related to the student. So now we are going to start the first slide, that is open book examination. ये guideline है that is being based on the letter issued by the HEC, the reference COVID-19 guidance number 6, assessments and examination. This is quoted by the controller in his letter as well. The way of online book examination is being conducted due to a COVID जो इन conditions हैं उसकी वजह से. The university has introduced online open book exams in response to the coronavirus conditions. So therefore, the way you prepare for and sit these exams in a different to what you are familiar. जो conventional method है ना उसके मुताबिक हम ये एग्जाम नहीं देंगे, but we have a different environment, especially if you are going to prepare for this examination. You will sit and to reply from your home. So therefore, the situation is a different. The condition this time is a very different. When you have to take your open book exams, you will be set alone, remotely, usually in your own home or in any separate or a private home or a private place. So you will use an internet connected computer to log in to the Microsoft Teams system to download the exam paper. First of all, you have to be with some accessories, so that I will discuss that one, what conditions, what requirements you need to be prepared before you are sitting in the examination. You will type your exam response and have access to your own textbook, notes and other resources. आपको access होगी to your textbooks, notes, online and offline material, but you will upload your response in a Microsoft Teams once you have submitted. That is the only the way, and that is not repairable, and that is not reloaded or रिवीजन जो नहीं दे सकते, आप इसको जो है ना करेक्ट नहीं कर सकते, आप और मटेरियल दे नहीं सकते. दिस इज वंस यू हैव टू अप्लाई एंड रिप्लाई, that will be accepted as an answer book, and that should be a one document. आपने एक ही डॉक्यूमेंट में जमा करवाना है. तो इसका मतलब है कि आपको ये जो है टेम्पलेट मिलेगा, आंसर कॉपी का टेम्पलेट मिलेगा, आपको जो है ना क्वेश्चन पेपर मिलेगा ऑन योर, और आपको ईमेल दी जाएगी, शेड्यूल दिया जाएगा, which you will receive on your online media. So you will then reply on that one. Now some students may need to handwrite their exam response. कुछ हो सकते हैं कि स्टूडेंट अपना response handwriting से देना चाहें. तो for those students, or few of the students may have a requirement कि वो अपना जो है ड्राइंग लें, स्केचेस बनाएं, डायग्राम बनाएं बाय हैंड, तो वो सबमिट करना चाहें तो दैट कैन बी सबमिटेड इन डॉक्यूमेंट बाय I may recommend you can use the Microsoft Lens scanning application, which can be downloaded from Play Store, और फिर उसको आप यूज़ कर सकते हैं कि हैंड राइटिंग का स्कैन करके आप एक ही डॉक्यूमेंट में फिर सबमिट करें. क्रिएट योर ओन एग्जाम कंडीशंस. आपने अपनी एग्जाम कंडीशंस प्रिपेयर करनी है वेयर एवर यू आर सिटिंग. जहाँ भी बैठ रहे हो और बैठ के एग्जाम दे रहे हो, यू हैव टू सी दैट following things should be with you. As you will be taking your exam at a home or at any private place, you will need to create your own exam conditions. Please take the necessary practical steps to be ready beforehand. We recommend that you have a space which is quiet and free from interruption. ये है कि वो एक ऐसा स्पेस हो जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे. आपके पास डेस्क हो या टेबल हो, आपके पास एक कंफर्टेबल चेयर हो,
एडिकेट लाइटिंग हो, और फिर इंटरनेट कनेक्टेड कंप्यूटर विथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और इक्विवेलेंट जो है ना वो आपके पास हो। आप अगर कोल्ड एरियाज़ में हैं तो वहाँ पे हीटिंग का जो है ना बंदोबस्त हो, और कूल एरियाज़ में हैं तो फिर आपको आपके पास हीटिंग हो। जो अगर हीट एरियाज़ में है तो कूलिंग का जो ना प्रॉपर बंदोबस्त हो। तो व्हेन एंड दैट मस्ट बी अ कंफर्टेबल एंड प्रैक्टिकेबल। जहाँ जहाँ आप बैठ रहे हो वहाँ पे आप जो है ना प्रॉपरली उसको comfortably आप आंसर कर सको। Now you have to require that you have to fix an alarm so that it may have to inform you that how much the time you have consumed, and you must have even a drinking water and a refreshment so that आपके पास जो है ना थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। you have a 24 hours to answer these things, but I may recommend you कि आप उस वक्त तक ना उठें जब तक आप जो है ये पेपर सबमिट करके या उसको कंप्लीट करके सबमिट ना करें, उस वक्त तक आप जो है ना उस कंडीशन में एग्ज़ाम के दौरान एग्ज़ाम हॉल में बैठे रहें जहाँ भी आपने एग्ज़ाम का माहौल बनाया हुआ है। You should have to sit over there until unless you may have to submit the answer copy. To ensure you are ready from open book exams, now you need the practice कि आपने इस पे क्योंकि टाइम लगता है अपलोडिंग में, डाउनलोडिंग में, फिर सबमिशन में, तो यू शुड हैव टू प्रैक्टिस अर्लियर कि आपको उसकी प्रैक्टिस हो कि किस तरह से मुझे ये एग्ज़ाम में बैठना है और उसके बाद कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो प्लीज़ टेक टाइम टू नेविगेट द प्रैक्टिस एग्ज़ाम साइट इन अ माइक्रोसॉफ्ट टीम and rehearsal, downloading, submitting a response to a past midterm पेपर एंड असाइनमेंट। जैसे मैंने असाइनमेंट भेजी है आपको, आपने उसका रिस्पॉन्स दिया है, फिर आपको मैंने जो है मिड टर्म दिया है, तो उसको डाउनलोड करें, फिर उसको जो है ना अपलोड करें, भेजें वापस। देन इट विल बी रिहर्सल दैट हाउ मच द टाइम इज बीइंग कंज्यूम्ड ऑन दिस uploading, downloading, and giving an answer, so that you should have a good एक्चुअली प्रिपरेशन कि कितना टाइम लगता है आपको, ये आपको मतलब कंफर्म होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो इसलिए सेव एन एग्जाम रिस्पांस टेम्पलेट, जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट है मेरी असाइनमेंट में पड़ा हुआ है, वो भी आप क्लिक करके उठा सकते हैं, फिर उसको जवाब दे के सबमिट कर सकते हैं। क्लिक टू ओपन एंड डाउनलोड द एग्जाम पेपर्स, वेदर इट्स PDF में है या वर्ड डॉक्यूमेंट में है, उसको खोल के किसी भी सब्जेक्ट आप खोल के उसको डाउनलोड करें, फिर अपलोड करें। देन यू विल प्रैक्टिस दैट हाउ टू सबमिट दिस वन ऑनलाइन टू द टीचर। so this practice will gives you that how much time is consumed for the paper submission. So practice to type in the exam purpose, answer करें, फिर in response करें, template लें, क्योंकि we will give you a template of the answer book and you have to write on that one. उसमें एक ब्लैंक्स होंगे, उसको आपने फिल करना है, बाकी पेपर ब्लैंक होगा, उस पर आपने आंसर करना है, रेस्पॉन्स करना है the questions being given to you. So when you finish that one, you have to save it into the PDF. अगर आप PDF में नहीं सबमिट करते तो you can save it into a Word document and then submit it and upload to the at work and then return to the teacher. Now the how to submit your exam response. आपको exam response कैसे submit करना होगा? Remember, you can only submit your exam response once. You will be unable to submit an additional or amended version in a Microsoft team. You have no choice. You have to submit only one answer and one document. The exam of a theory will be conducted as an open book exam. Students must attempt the open book exam within 24 hours. According to the schedule timings provided in the timetable. आपको जो पहले टाइम टेबल मिला हुआ है उसके मुताबिक आपको पेपर मिलेगा, and the time starts from the 9 a.m. and it will end in the next 9 a.m. At the next day. So for a semester you will receive 4 questions और उसमें 15 marks होंगी पर क्वेश्चंस पे, and you have to attempt all the questions. और फिर
ये जो है ओरल में सेमेस्टर हो या टर्म हो, उसमें 80 मार्क्स का ओरल होगा, जिसमें आपको 1-on-1 जो है ना ओरल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा. नाउ यू हैव actually I haven't given over here for a term system because you are not the students of a term system, whereas the question paper of the term system will be this will have 5 questions. So therefore I am not discussing over here, and I didn't write it because it will confuse you कि 4 होंगे या 5 होंगे. तो for a semester there will be a 4 questions, and each question carries a 15 marks, and all questions must be attempted. There is no choice for you students के आप जो है ना 4 में से, जैसे पहले होता था कि 6 में से 4 करने हैं या 8 में से 5 करने हैं, तो दैट इज नॉट ओवर हियर इन ओपन बुक जो है ना उसमें आपको 4 क्वेश्चंस होंगे और चारों ही करने होंगे. नाउ द एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ ए बिहेवियर, आपकी तरफ से हमें क्या चाहिए? हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज अ responsible members of the university's community, and in the context of a open book examination, this means students are permitted to refer to their own resource, own courses, and review notes, and even look up information in the offline or online resources. For example, textbooks or online journals, वो देख सकते हैं, and expected to submit the work which has not been submitted either partially or in full, and the material should be quoted, that whatsoever the diagram or sketches you are taking, you should have to quote that one, where from you have to taken that one. So the things which is that you should not copy it from the work of any other candidate, nor consulted, colluded with any other candidate during the examination. That the work you are submitting for the open book examination is entirely your own work. You are expected to spend the same amount of time as you would for a conventional exam to read the exam paper, plan your answers, and type or handwrite your response. Do not waste, and you do not sit at the up to the end of your exam time. You should have to start, and then you have to submit that one uh, within a time. And if you have completed the uh, the question paper and answer, you have to submit with the teacher. So the students are desired, or even this is being directed by the controller examination and HEC to avoid the plagiarism and unpermitted collaboration in their own interest. ये आप अपने इंटरेस्ट में किसी से भी कोलोब्रेशन ना करें और प्लेजरिज्म काज ना करें, किसी से देख के आप या कट एंड पेस्ट ना करें. यूज ऑफ अनफेयर मींस कैप्चर्ड थ्रू अ सॉफ्टवेयर will reflect on words of on award of marks. ये जो है ना आपको जो मार्क्स मिलेंगी उस पर अप्लाई होगा. अनफेयर मीन्स अगर आपने यूज किए हैं तो स्टूडेंट्स with a similar answers of questions or a text copied from websites will have to face the consequences according to a code of conduct. ये है कि आपने अगर किसी से कॉपी किया, अगर आपने कट पेस्ट किया, किसी वेबसाइट से कट एंड पेस्ट किया, तो ये असेस होगा, एंड द मार्क्स विल डिपेंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट मटेरियल. सो ऑल स्टूडेंट्स विल गेट द टेक होम ओपन बुक एग्जाम एट द सेम टाइम. आपको एक ही वक्त में सबको क्वेश्चन पेपर मिलेगा एंड मस्ट सबमिट इट बैक विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड. आपको जो टाइम दिया जाता है उसी के अंदर आपने इस आंसर बुक को जमा करवाना है. जो टेम्पलेट आपको दी जाएगी, जो आपको आंसर कॉपी दी जाएगी, यू हैव टू आंसर ऑन इट एंड सबमिट इट विद इन 24 आवर्स. तो दी क्वेश्चन पेपर will be sent to the students as an assignment in MS Team. MS Team में as an assignment आपको क्वेश्चन पेपर भेजा जाएगा and you have to answer on a template, और आपको स्टूडेंट्स को जो है ना सबमिट करना होगा answers or a solution of the question paper on a template which is being given into the MS Team assignment option.
उसमें आपको ये भेजा जाएगा, तो यू हैव टू अटेम्प्ट ऑन दैट वन। नो व्हेन यू स्टार्ट योर एग्जाम्स ऑन द डे, अगर आप को पता होना चाहिए कि आपको किस दिन और कौन सा पेपर किस टाइम से स्टार्ट होगा और किस टाइम पे एंड करेगा। स्पेशली द थ्योरी विल स्टार्ट फ्रॉम द 9 AM एंड दैट विल एंड ऑन द नेक्स्ट डे एट 9 AM। समर में जो है ना, गर्मियाँ हैं तो इसमें जो है ना आपको 9 से 9 तक जो है ना ये चलेगा। तो मोस्टली द theory, at the end of the theory the practical will start, and that will take for 3 days. Now you must not leave it until last minute to submit your exam response in a Microsoft team. आप जब तक Microsoft team में अपना सबमिट नहीं करते उस वक्त तक आप ना उठे। The penalties will be applied if you submit your exam response later than the times detailed above. ये आपको जब 9 से 9 बजे तक अगर आपने उसको सबमिट नहीं किया तो फिर पेनल्टीज होंगी। दैट इज़ फ्रॉम माय सब्जेक्ट, ये मेरी तरफ से हैं और ये पॉलिसी का हिस्सा नहीं है, इसलिए आई हैव मेड दिस लेक्चर फॉर दी फिजियो 101। अगर आपने 24 घंटे में ये रेस्पॉन्स नहीं दिया तो पेनल्टीज विल स्टार्ट। इससे ये होगा कि अगर आपने मुझे 24 घंटे के अंदर दे दिया तो देयर इज़ नो पेनल्टी। अगर आपने फर्स्ट 15 मिनट्स में आपने अगर जमा करवा दिया तो देयर इज़ नो पेनल्टी। अगर आपने 24 घंटे गुजरने के बाद 30 मिनट लगाए तो आई विल डिडक्ट 5 मार्क्स फ्रॉम योर टोटल मार्क्स विच यू आर ऑब्टेनिंग। अगर आपने 31 से 45 मिनट्स लगाए तो 10 मार्क्स डिडक्ट होगी। अगर आपको 1 घंटा लग जाता है तो सबमिट दैट वन, तो आई विल डिडक्ट 15 मार्क्स फ्रॉम योर पेपर। जो भी आपने मार्क्स उठाई हैं उसमें से 15 मार्क्स काटूंगा, और अगर आपने 1 घंटे के बाद जमा करवाई तो दैट विल बी अप 0 मार्क्स, फिर आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो की पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड इन एडवांस, ये आपको समझना पड़ेगा, आपको जहन में रखना पड़ेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दैट योर एग्जाम टाइम विल स्टार्ट एज स्केड्यूल्ड इन योर टाइम टेबल। जैसे टाइम टेबल में लिखा हुआ है टाइम इस तरह से स्टार्ट होगा, एंड यू मस्ट बी प्रिपेयर बिफोर द एग्जाम स्टार्ट। आपके एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आपने तैयारी पकड़नी है, एग्जाम के दौरान तैयारी नहीं पकड़नी है। प्लीज क्लिक ऑन द लिंक टू ओपन और डाउनलोड योर पेपर एज टाइम स्टार्ट्स। आप उसी वक्त ओपन करें, उसी वक्त स्टार्ट करें, उसी वक्त आप जो है ना डाउनलोड करें जैसे टाइम स्टार्ट होता है। दिस विल बी the equivalent of an invigilator saying you may turn over the exam paper now। ये इसी तरह से है क्लिक करना जिस तरह से आपको इन्विजिलेटर कहते हैं कि आप अपना एग्जाम स्टार्ट कर सकते हैं आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आंसर कॉपीज एंड क्वेश्चन पेपर्स। बिफोर यू सबमिट योर एग्जाम रेस्पॉन्स you must first make sure your work meets each of the requirements in the list below। ये आपको इंश्योर करना है कि आपको जो चीज़ें आपने जो सबमिट करनी है दैट मस्ट बी दैट यू मे ओनली सबमिट वन डॉक्यूमेंट। आपने एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। एनी स्कैन्ड इमेजेस, डायग्राम्स और हैंड राइटिंग मस्ट बी इंक्लूडेड इन द सेम डॉक्यूमेंट। उसी में रखना है, उसी एक ही डॉक्यूमेंट में। अगर आपने इमेजेस रखने हैं, आपने डायग्राम रखना है, आपने हैंड राइटिंग में कोई आंसर्स दिए हुए हैं, वो भी एक डॉक्यूमेंट में आपने अपलोड करने हैं। प्लीज मेक एब्सोल्युटली श्योर you upload the correct document as you will not be able to change this once it has been submitted। क्योंकि आपने इस डॉक्यूमेंट को चेक करना है कि जो आप सबमिट कर रहे हैं, जो अपलोड कर रहे हैं कि वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट है कि नहीं है। अदरवाइज अगर आपने कोई और डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया इंस्टेड ऑफ ए आंसर कॉपी, जैसे कि लास्ट टाइम आई हैव गिवन यू द असाइनमेंट एंड one student has submitted a lecture of anatomy to me as an assignment, जबकि I have given a assignment to everybody on a proforma, that proforma has to be submitted। वो proforma जमा करवाना था, ना कि किसी और का lecture। So this way if you are selecting the document you should ensure that one कि वो document properly वही document है
जो आपने सबमिट करना है। तो योर एग्जाम रेस्पॉन्स मस्ट बी सबमिटेड विद इन द ड्यूरेशन। वो आपने ड्यूरेशन के अंदर ही जमा करवाना है, जितने हावर्स दिए गए हैं, जितने मिनट्स दिए गए हैं। अगर आपने उसमें नहीं जमा करवाया then you will be failed. So stated in the individual timetable में जैसे ही हमने लिखा है कि आपने उसको, आपको ईमेल भी मिलेगी टाइम टेबल की, आपको जो भी थ्योरी का पेपर होगा, प्रैक्टिकल का टाइम टेबल होगा, आपको डेफिनेटली स्केड्यूल में मिलेगा, जिसको आप क्लिक करोगे और जिससे आप अटेम्प्ट करोगे अपना रेस्पॉन्स। सो योर एग्जाम must be submitted within 24 hours of the paper being distributed. ये जो आपने पेपर लिया है, ये आपने 24 घंटे के अंदर अंदर रेस्पॉन्स देना है, अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। तो बिफोर यू सबमिट योर एग्जाम रेस्पॉन्स शुड बी आइडेंटिफाइड ओनली बाय योर कैंडिडेट नंबर। आपका कैंडिडेट नंबर उस पे होना चाहिए। योर कैंडिडेट नंबर does appear on your university exam card के पे ऊपर जो है ना आपका वो एग्जाम नंबर लिखा हुआ है। You have to copy that one on your template. Your exam response should not contain any other piece of information. उसमें कोई भी निशानी, कोई भी चीज़ नहीं इंडिकेट होनी चाहिए जिससे ये लगे कि ये पेपर आपका है। तो you have to only write the candidate number on the template and save your exam response as PDF document. If you are unable to submit as a PDF, you may submit in the existing Microsoft Word format में भी आप जो सबमिट कर सकते हैं। लेकिन ये है कि दिस में लीड टू फॉर्मेटिंग इश्यूज। ये है कि आप जो जब फॉर्मेट में माइक्रोसॉफ्ट फॉर्मेट में आप सबमिट करते हैं तो that may have a formatting issues of editing and even sometimes it is changed if it is opening in a other माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट में अगर कहीं पे खुलता है। तो अगर आपने जैसे किसी और डिवाइस से सबमिट किया है और मेरी डिवाइस वो नहीं है, तो कंपेटेबिलिटी ना होने की वजह से दिस में हैव टू चेंज द फॉर्मेट। तो इसलिए इफ यू आर सबमिटिंग इट इन PDF, then the format cannot be changed even it is open in a different devices. The file name should follow the format. आपने जो भी फाइल बनाई है उसका नाम रखने का तरीक़ेकार ये है कि पहले कैंडिडेट नंबर हो, फिर पेपर नंबर हो। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि भाई 2K19 AB 125 ये स्टूडेंट कैंडिडेट नंबर है और मेरा पेपर है फिजियो 101। तो आपने फिजियो 101 उसका इस तरह से नाम रखना है कि फोल्डर शुड शो कि कैंडिडेट कौन है और पेपर किसका है। तो दिस विल गिव्स अस एक्सेस that we may have to document all these papers and all the students folders very separately, and it can indicate for a verification जब भी हमें verification करनी पड़ी या इसको ओपन करना पड़ा तो that will be an easier method to access your particular आंसर कॉपी। उस आंसर कॉपी को ढूंढने में आसानी होगी और इससे ये है कि we can even recheck and even reassess that one by आइडेंटिफाइंग योर फोल्डर्स। अदरवाइज बहुत सारे फोल्डर हो जाते हैं और फिर उसमें से ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है टू सॉर्ट आउट द थिंग। अगर आपने उसको डिफरेंट नाम दिया हुआ है, डिफरेंट फोल्डर बनाया हुआ है, डिफरेंट तरीके से सबमिट किया हुआ है, तो दैट विल नॉट गिव अस टू सेग्रीगेट दी थिंग्स। इसलिए यू हैव टू सबमिट विथ अ पर्टिकुलर नेमिंग एज यू हैव अ स्पेशल नंबर। तो 125 शुड बी चेंज। अगर आपका नंबर कुछ और है तो 125 नहीं लिखना है, अपना नंबर लिखना है। ये मैंने एग्जांपल दिया है फॉर अंडरस्टैंडिंग के हाउ टू राइट योर रजिस्ट्रेशन नंबर। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है 2K18 सपोज AV 233, तो यू हैव टू राइट 2K18-AV-233 फिजियो 101। तो इस तरह से आपने इस फोल्डर को नाम देना है। नाउ अगर आप टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट टीम की साइट पे रीच नहीं कर पाते, पेपर अपलोड नहीं होता, डाउनलोड नहीं होता, तो व्हाट टू डू नाउ? Now please check that you can access the relevant Microsoft Teams site for each
of your exam papers well in advance of the exam day. एग्जाम डे से पहले आप जो है ना उसको एक्सेस करें, उसको खोलें और फिर चेक करें कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिवाइस में मसला नहीं है, कोई आपको डाउनलोडिंग, अपलोडिंग और सबमिटिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अगर सॉफ्टवेयर कोई इशू आ रहा है तो रीइंस्टॉल दैट सॉफ्टवेयर। अगर कोई टेक्निकल हार्डवेयर प्रॉब्लम है टू चेक दैट डिवाइस, उसको रिपेयर करवाएं। एंड यू विल not been able to see the exam paper until the start time on the exam date. एग्जाम डेट से पहले, स्टार्ट टाइम से पहले आपका वो पेपर अगर असाइनमेंट में पड़ा हुआ है तो वो खुलेगा नहीं जब तक वो टाइम पूरा नहीं होता। ऑन द डे ऑफ योर एग्जाम इफ यू आर अनेबल टू डाउनलोड, और डाउनलोड नहीं कर पा रहे, ओपन योर एग्जाम पेपर्स एट दिस पॉइंट, अगर आपको वो नहीं खुलता, you are having a technical problems submitting your exam response, आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है टू सबमिट दैट वन, तो प्लीज कांटेक्ट द सपोर्ट टीम। हमारी सपोर्ट टीम है यूनिवर्सिटी की, उससे आप कांटेक्ट करें। सिमिलरली इफ यू कैन नॉट ओपन और डाउनलोड योर एग्जाम पेपर आउटसाइड, तो अगर आप डाउनलोड नहीं कर पाए हैं और आप रिस्पांस नहीं दे पा रहे हैं, तो आपने सपोर्ट टीम के साथ कांटेक्ट करना है। This PowerPoint is prepared on the basis of the document which is issued by the controller of examination. ये कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ने अपना डॉक्यूमेंट जो है अपलोड किया हुआ है अपनी SAU टंडोजाम के वेबसाइट पे, उसकी मैंने ये पावर पॉइंट बनाई है, उस पर मैंने आपको ये सारी जो ना पॉलिसी जो यूनिवर्सिटी की है उसको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। एंड इन दैट वे यू हैव टू आंसर द थिंग्स, और ये जो आपने जो चीज़ें सबमिट करनी है that will be according to the policy of HEC, according to the policy of the Sunni Agriculture University, which has been adopted by this university and circulated through a controller of examination to the student. ये SOPs students के लिए हैं, so that's why I have discussed with you कि ये SOPs कैसे अप्लाई होंगी और आपने किस तरह से करना है। few details I have submitted that one which is orally और वर्बली जो है ना हमें बताई गई थी, तो वो मैंने यहाँ पे आपको इन राइटिंग दे दी हैं। तो नाउ यू कैन रीड डाउन दिस पावर पॉइंट एवरी टाइम सो दैट इट मे हेल्प यू कि आपने क्या करना है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। तो दी थिंग इज दैट कि हमेशा मैं जब भी आपसे डिस्कस करता था, जब भी आपसे मेरी प्रेजेंटेशन हुआ करती थी, लेक्चर हुआ करता था, तो always you were asking from me कि साईं हम एग्जाम के बारे में हमें बताएं। तो therefore I have mentally today prepared that I should have to submit you the information regarding the examination so that you may have to understand how I will conduct the examination. Now I am coming down that how I will conduct the examination of a physiology 101. जो भी हमने आपको रिसोर्सेज, जो भी हमने आपको लेक्चर्स दिए हैं, पावर पॉइंट्स दिए हैं, जो मैंने डिस्कस किया है, दैट इज़ अ इंफॉर्मेशन। वो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है अबाउट दी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में मैंने सिलेबस दिया हुआ है जिसमें हीमोस्टेस है, फीडबैक होम्योस्टेसिस है, फीडबैक मैकेनिज्म है, नर्वस सिस्टम है, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो उसके बारे में मैंने लेक्चर्स दिए हैं, आपको पावर पॉइंट्स दिए हैं, तो दैट इज़ अ इंफॉर्मेशन। लेकिन मेरी जो क्वेश्चनिंग होगी, जो 4 सवाल होंगे, वो इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए नहीं होंगे, लेकिन मेरा सवाल ये होगा कि हाउ टू अप्लाई दैट इंफॉर्मेशन। ये आप अप्लाई कैसे करेंगे, जो मैंने आपको टीच किया है ये आप फील्ड में कैसे अप्लाई करेंगे। एंड you have to find out within the notes, within the PowerPoints, within online offline informations to answer me। कि जैसे मैंने आपको स्पायरोमेट्री पढ़ाई है कि स्पायरोमेट्री क्या है, उसके इक्विपमेंट क्या हैं, और उसको जो है आप इस्तेमाल करते हैं, तो हाउ द स्पायरोमेट्री वर्क्स। तो मैंने फंक्शंस बताए, उसमें क्या क्या आप जो है ना इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कैसे मेजर करेंगे, टोटल कैपेसिटी कैसे, टोटल लंग कैपेसिटी कैसे मेजर करेंगे, एक्सपायरी रिजर्व
कैसे मेजर करेंगे, इंस्पायर्ड रिजर्व कैसे मेजर करेंगे, टाइडल वॉल्यूम कैसे मेजर करेंगे। तो आई हैव गिवन यू द इंफॉर्मेशन हाउ टू यूज द स्पायरोमीटर। बट द क्वेश्चन ऑलवेज बीन, मेरा सवाल ये होगा कि अगर मैं आपको एक कुत्ता है जो नॉर्मल है, अगर मैं आपको कहूँ कि इसको स्पायरोमेट्री करें, तो हाउ यू विल कैलकुलेट द टोटल लंग वॉल्यूम। अब ये सवाल है, तो डेफिनेटली यू हैव टू आंसर फ्रॉम द इंफॉर्मेशन व्हिच आई हैव गिवन, और दैट इज अ एप्लीकेबल क्वेश्चन। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है कि हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग कैन इंस्पायर फुली एंड एक्सपायर और एक्सेल फुली आउट ऑफ, ये आप लंग्स को आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं और फिर आप इसको स्क्वीज भी कर सकते हैं। आप इंस्पायरेशन फुल भी ले सकते हैं और एक्सपायरेशन फुल भी कर सकते हैं, लेकिन डॉग कैन नॉट डू इट because it is not under your command. How you will use the spirometer for this purpose? अगर डॉग पे इस्तेमाल करना हो तो अकॉर्डिंग टू द डॉग बिहेवियर, जो फुल इंस्पायरेशन भी नहीं करता, फुल एक्सपायरेशन भी नहीं करता, तो हाउ यू विल अप्लाई एज अ वेटरिनरियन ऑन द डॉग एंड टू कैलकुलेट द टोटल लंग कैपेसिटी। तो इसलिए ये जो है ना, ये मैंने एग्जांपल दिया और जवाब नहीं दूंगा यहाँ पे कि वो कैसे आपने जो है ना इसको आंसर देना है। तो लाइकवाइज यू हैव टू आंसर द थिंग्स। और ये इसी तरह से ब्लड ग्रुपिंग है, इस तरह से आपका जो है ना डिफरेंट जो है ना टाइटल, फिजियोलॉजिकल टाइटल्स हैं, उसको मैं एड्रेस करूँगा। हाउ टू अप्लाई द मेथडोलॉजी। अगर मैंने आपको कहा है कि डिटर्मिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन कैसे करते हैं, तो हाउ यू विल अप्लाई ऑन इट, बिकॉज द डिटर्मिनेशन तो आपको आ जाएगा, बिकॉज आई हैव गिवन यू अ फुल इंफॉर्मेशन, लेकिन हाउ टू अप्लाई दैट वन ऑन अ डॉग, ऑन अ कैट, ऑन अ buffalo, on a cow, on a horse. So that will be the questions will be applicable questions. How to apply your information for retrieving the things or to answering the applications. मतलब clinical aspects में पूछूंगा कि how to apply this information and to retrieve the result, और वो आपने results कैसे obtain करने हैं। तो likewise आप लोग जो है ना उसको जो है एड्रेस करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि मैंने अब आपको फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन पेपर भी बता दिया है, कंडक्ट ऑफ द क्वेश्चन एग्जाम भी बता दिया है, प्रिपरेशन ऑफ द एग्जाम फ्रॉम योर साइड मैंने वो भी बता दिया है, और हमारी तरफ से जो आपको चीज़ें मिलेंगी वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं कि आपको क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा, आंसर कॉपी का टेम्पलेट भी मिलेगा, उस पर आपने जवाब भी देना है। इट इज़ बेटर कि पीडीएफ में आप जो है सबमिट करें, अगर नहीं करते तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबमिट कर सकते हैं उस आंसर कॉपी को। तो दिस इज अ वे कि अगर आपके पास कोई कंफ्यूजन थी तो आई हैव ट्राइड टू रिमूव दैट कंफ्यूजन कि हाउ टू आंसर इट। एंड दिस लेक्चर, ये जो मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन दी है, दैट इज अप्लाइड टू फिजियो 101। ये फिजियो 101 पे अप्लाई होगा। दिस इज अंडर द पॉलिसी being made by the HEC, being made by the university, approved by the university, adopted by the university। तो ये मैंने इसको जो है इसलिए यहाँ पे एड्रेस किया है। तो दिस इज नॉट आउट ऑफ पॉलिसी, इट इज अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी एंड एज पर रूल्स जो भी हमें अडॉप्ट करने हैं उसके मुताबिक मैं इस एग्जाम को कंडक्ट करूँगा। ओरल में ये होगा कि आपको 20 मिनट्स पर स्टूडेंट पे हमने लगाने हैं, एंड 1-to-1 जो है ना आपसे क्वेश्चंस होंगे। एंड दैट आई हैव कंडक्टेड ऑलरेडी the practicals as well as I have given you a journal. I have also given you an assignment in the practical. So after detecting these marks, remaining marks will be awarded on the basis of a viva. तो मैंने जो है ना थोड़ी सी जो है ना ड्यूरिंग टीचिंग मैंने आपसे जो है ना कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। जैसे मैंने कहा है कि फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ डॉग करें, तो आपने वो करके दिया है। मैंने उसको प्रैक्टिकल के असाइनमेंट्स में ऐड किया है, और जो अब मैंने थ्योरी में मिड आपका रिसेंटली लिया है, तो मिड की जो एग्जाम, मिड की जो आपकी रिज़ल्ट है वो आपके थ्योरी की रिज़ल्ट में चली जाएंगी। तो बाकी रिमेनिंग 60 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। तो 60 मार्क्स के एग्ज़ाम के बाद यू विल रिसीव द रिज़ल्ट व्हिच विल बी अनाउंस्ड बाय द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम ब्रांच जो है ना अनाउंस करेगी, एंड ऑल दैट रिज़ल्ट विल बी गिवन टू यू इन द फॉर्मेट ऑफ ए मार्कशीट, और वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू हैव एनी कंफ्यूजन स्टिल, अगर कोई सवाल कोई अगर फिर भी बचता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आया हो, तो यू कैन आस्क नाउ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, अक्सा नूर आपने हाथ सर उठाया हुआ है जी।
जी अक्सर आपने जो बताया है कि मतलब टीम के अंदर आएगा तो हम उसको वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट में से कॉपी करके फिर उसके अंदर लिखेंगे, मतलब जी कैसे? जी हाँ, वो ऑनलाइन भी आपका ओपन होगा, डाउनलोड करके भी आप लिख सकते हैं, फिर अपलोड कर सकते हैं आप। डायग्राम वगैरह टेम्पलेट सब जो हम है ना, बना। हम जो भेजेंगे आंसर कॉपी का टेम्पलेट, वो आप जो है ना वहाँ पे खोलेंगे। आप माइक्स बंद कर देना, ऐसे तो आपको जो है ना रेस्पॉन्स नहीं आएगा। जी हाँ, तो आपको जो है ना हमारी तरफ से जो टेम्पलेट मिलेगा, आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और वहाँ पे ओपन भी कर सकते हैं ब्राउज़र में। वहाँ पे भी ब्राउज़र में लिख सकते हैं, लेकिन सेव करना मत भूलिएगा। बार बार आपको सेव करना होगा, अदरवाइज़ लोड शेडिंग की वजह से, कनेक्टिविटी की वजह से हो सकता है कि वो आप जितना काम करें वो आपका रह जाए और फिर डिलीट हो जाए, फिर दोबारा करना पड़े। इसलिए यू हैव टू ड्यूरिंग राइटिंग एंड गिविंग अ आंसर, यू मस्ट हैव टू सेव इट। बार बार जितनी दफ़ा हो सके कि आप उसको सेव करते रहो, और आखिर में लास्ट में जो है ना आप जो है ना उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके सेव करके उसे सबमिट कर दो। इट इज़ अ बेटर दैट यू मे हैव टू सबमिट इट इन पीडीएफ फॉर्म, अदरवाइज यू कैन सबमिट इन माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट में भी आप सबमिट कर सकते हो। सिर्फ उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आपने जो है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम किया हुआ है, सपोज करें आपकी डिवाइस जो है ना जो है वो मोबाइल है, और मैं उसको ओपन करता हूँ, सपोज करें मैं अपनी डिवाइस में लैपटॉप पे, वो आपने लिखा है सपोज करें माइक्रोसॉफ्ट 10 में, और मैं खोल रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट 2007 में, तो उस फॉर्मेट जो है ना वो चेंज हो जाता है। तो दैट में है कि आप कुछ चीज़ें जो जैसे डायग्राम है, स्केचेस हैं, ऐसी चीज़ें आप डालते हो, तो मैं जब ओपन करूँगा तो हो सकता है कि वो तस्वीरें, वो कलर, वो हाइलाइटर्स वो गुम हो जाएं, एंड द फॉर्मेट में बी चेंज। और फिर आपको पता है कि अगर फॉर्मेट आपने एक अच्छा सा बनाया हुआ है और उसमें अच्छा लुक दे रहा है, वो अगर मेरे पास पढ़ने में नहीं आ रहा है और इस तरह की चीज़ें बन रही हैं कि वो इंटरप्रेट नहीं हो सकती हैं, तो यू मे हैव टू लूज द marks. Therefore, it is better that you have to convert this one into a PDF form rather than submitting it into a Microsoft Word. लेकिन ये नहीं है कि मैं उसको मना कर रहा हूँ, यू कैन सबमिट इट इन अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एज वेल, लेकिन अगर वो कंपेटेबल होगा तो दैट विल नॉट मेक एनी इशू। अगर मेरे डिवाइस से और आपकी डिवाइस मैच करती है, आप भी 2007 में आप सबमिट कर रहे हो, मैं भी 2007 में खोल रहा हूँ, तो दिस विल नॉट इफेक्ट ऑन दी फॉर्मेट। अगर आपने, मेरे पास भी 2010 है माइक्रोसॉफ्ट और आपके पास भी माइक्रोसॉफ्ट 2010 है, अगर मैं उसको अपने पास खोलूँगा तो दैट विल बी रिमेन सेम फॉर्मेट, दैट विल नॉट चेंज इट, that will not affect on your diagrams, sketches or any material which is submitted with the copy। तो इसलिए ये है कि अगर ऐसी चीज़ें आपने दी हुई हैं जैसे ड्राइंग है, हैंड राइटिंग है, तो you may have to submit it in the format of a PDF that will remain the same as such as you are submitting it। तो इसलिए it is better कि आप जो है ना उसको PDF फॉर्म में सबमिट करें। सर जो डायग्राम्स वगैरह होंगे वो हम कैसे सर लगाएंगे वहां पर, हैंड राइटिंग डायग्राम करेंगे या सर? डायग्राम अगर हैंड राइटिंग से आपने बनाई हुई हैं तो डेफिनेटली आप डायग्राम स्केचेस तो हैंड राइटिंग से ही बन सकते हैं। यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो तो ऐसी है नहीं जहाँ पे आप जो है ना डायग्राम या ड्राइंग बना सकें। कोई भी ऐसा हमारे पास जो है ना वर्ड प्रोसेसिंग नहीं है जिसमें आप इस तरह से करें। तो डेफिनेटली ये हैंड राइटिंग होगी, और उसका स्कैन करके आप जो है ना भेज सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट लेंस स्कैन एप्लीकेशन है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरी भी प्ले स्टोर पे स्कैनिंग जो है ना फ्री ऑफ कास्ट जो है ना पड़ी हुई हैं जो है ना एप्लीकेशंस, यू कैन यूज़ इट। उसका स्कैन बना के आप फिर अपनी जो है ना डॉक्यूमेंट में पुट कर दें। सर क्या ऐसे नहीं हो सकता जैसे इंटरनेट पर सर डायग्राम्स बनी हुई सर पड़ी कट रहती है, वहां से अगर सर उठा के अगर रख दे तो? कट एंड पेस्ट करेंगे तो ये जो है आपका जो है ना कापिंग में चला जाएगा,
वो कट एंड पेस्ट मैंने ही जैसे कहा कि वो प्लेजरम में चला जाएगा और प्लेजरम जो है ना अलो नहीं है। तो आप किसी स्टूडेंट की भी कॉपी नहीं कर सकते, आप किसी स्टूडेंट का मटेरियल भी कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। दैट अपना मटेरियल आपने सबमिट करना है। आप अपना क्वेश्चन ठीक है। पेपर और अपना आंसर देना है। अगर कॉपी पेस्ट करोगे तो दैट विल बी वन ऑफ द एविडेंस कि आपने जो है ना वहाँ से कॉपी किया हुआ है। और ये स्केचेस और डायग्राम ही तो बताते हैं कि आपने कहीं से उठाया हुआ है। अगर आपने अंडरस्टूड है कि आपकी ड्राइंग में और जो अपनी इंटरनेट पे पड़ी हुई है ड्राइंग, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी सर। सर जैसे हम लोग एक पावर पॉइंट पर हम जैसे सर प्रेजेंटेशन बनाते हैं सर, वहां पर हम सर पहले सर जैसे पिक्स हमारे सर पीसी में भी सर मौजूद होती हैं, तो हम सर अपने कंप्यूटर से पिक्स निकाल कर सर वहां पर अगर हम सर पेस्ट करते हैं तो ऐसे सर हम कर होता है। सकते हैं। हाँ, ये आप पहले से ही जैसे आपने ड्राइंग्स जो है ना की हुई हैं या आपके नोट्स में ड्राइंग्स हैं आपसे आपकी यस हाथ सर। से बनाई हुई हैं, आपके जो है ना मिसाल के तौर पे जर्नल पे बनी हुई हैं ड्राइंग, और आपको है कि एक्सपेक्टेशन के ऐसे सवाल आ सकते हैं, तो वो पहले से आप रख सकते हैं। अपने ही स्कैन करके वहाँ से आप रख सकते हैं और वहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। बट दैट इज योर मटेरियल ना, कि वो आप अपना मटेरियल तो दे सकते हैं लेकिन किसी और का मटेरियल उठा के आप सबमिट नहीं कर सकते। अगर आप सबमिट करेंगे तो वो चीटिंग में आएगा ना। वो तो मतलब सबमिट तो कर सकता है, कॉपी करके भी किसी से सबमिट कर सकता है, लेकिन वो कॉपी केस हो जाएगा ना। तो यू शुड बी वेरी कॉशियस कि प्लेजरम नहीं हो, कॉपी पेस्ट नहीं हो, कहीं किसी वेबसाइट से वो जो है ना निकला हुआ नहीं हो, क्योंकि वेबसाइट ऑटोमेटिकली जो हमारे पास प्रोग्राम है ना वो ऑटोमेटिकली बताते हैं कि इस वेबसाइट से इसने उठाया है ये मटेरियल। तो इसलिए जो है ना वो अवॉइड करना है जितना हो सके कि अपनी तरफ से आपने लिखना है। जो जो भी रिसोर्सेज हैं आप रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हैं, बुक इस्तेमाल कर सकते हैं, जर्नल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑनलाइन मटेरियल ले सकते हैं, लेकिन लिखना आपने अपने तौर पे है, वो कॉपी पेस्ट नहीं करना है। जी मैंने बुक ली रिसेंट जियोलॉजी से, आपने ऑनलाइन के अंदर लिखी थी, उसको पढ़ी है जेम्स कर्नल की। जी बेटे, सर आपने ना ऑफलाइन के अंदर बुक लिखी थी फिजियोलॉजी की इको आ रहा एडिशन। है आपका, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा, इको आ रहा है, पता नहीं कोई साउंड प्रॉब्लम है आपके माइक में। अब आ रही है आपको आवाज? जी जी सर आपने आउटलाइन के अंदर विटनरी फिजियोलॉजी की बुक लिखी थी जेम्स कर्नल की, तो सर हमने वो मंगवा लिया, मुझसे पढ़ लें? बिल्कुल पढ़ें बेटे। दी इंफॉर्मेशन जो भी आपको कहीं से भी मिलती है अबाउट द फिजियोलॉजी, जो भी मेरे टाइटल्स और टॉपिक्स हैं, यू कैन गो थ्रू ऑनलाइन, यू कैन गो थ्रू द बुक्स, यू कैन गो थ्रू माय पावर पॉइंट्स, और इवन यू मे हैव टू गो थ्रू द नोट्स। देयर इज नो एनी मतलब रिस्ट्रिक्शन, ओपन है। इसलिए इसका नाम ही ओपन बुक जो है ना एग्जामिनेशन रखा गया है। ओपन बुक एग्जामिनेशन का मतलब ये है कि मेरी किताबें नहीं, सारी किताबें जहाँ भी पढ़ी हुई हैं आप उससे जो है ना आप आंसर दे सकते हो और वहाँ से पढ़ के जो है ना जवाब दे सकते हो। ठीक है बेटा, नाउ आई शुड हैव टू कंक्लूड दिस वन, एंड आई होप दैट मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैज बीन क्लियर्ड, and I think that you will go through the PowerPoint which I am uploading on my class material, and you can download that one and read down कुछ चीज़ें जो यहाँ पे मैंने नहीं भी समझाई हैं या नहीं भी कवर हो पाई हैं। If you have any query you can ask me, आप पूछ सकते हैं अगर कोई भी मेरे पास इंफॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग दी क्वेश्चन, जो भी आप पूछेंगे, जो भी पॉलिसी मैटर्स के बारे में आपका जो भी आपकी क्वारी होगी, आई विल आंसर दैट वन, आई विल ट्राई विल बी ऑफिशियली विथ मी, तो मैं उसको जवाब दूंगा। यहाँ पे मैंने इसलिए डिस्कस नहीं किया जो टीचर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं या SOPs हैं, मैंने वो यहाँ पे इसलिए डिस्कस नहीं किया बिकॉज दिस इज़ नॉट रिलेटेड विथ यू। तो यहाँ पे मैंने वो चीज़ें डिस्कस की हैं विच इज़ रिलेटेड विद द guideline of a students, so therefore I have took a
लेटर जो मुझे जो है ना इस लेटर के साथ साथ जो HEC की इंफॉर्मेशन हैं, आई हैव डाउनलोडेड दैट वन एंड आई हैव गो थ्रू दी HEC इंफॉर्मेशन एंड एज वेल एज SAU इंफॉर्मेशन और अदर यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन से लिंक करके मैंने एक जो ना पावर पॉइंट बनाई है। तो आई हैव गिवन यू दिस इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ माय सब्जेक्ट, जो मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जो मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पॉलिसी है, that I have shared over here, which is the policy of all HEC, which is the policy of a Pakistan education। तो इसलिए जो है ना ये सारे इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई होती है, तो आई विल आल्सो अप्लाई ऑन माय सब्जेक्ट एज वेल। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई और सवाल हो तो आई कैन आंसर यू। ठीक है बेटे, मैं इसको अभी सर। जी बेटे, या सर जो सर 2K18 वाले हैं सर, जिनको सर सप्ली है, वो जी सर बेटे। एग्जाम सर कैसे देंगे सर, आपका या दूसरे सब्जेक्ट्स का? बेटे मैंने आपने जो फॉर्म भरा है एग्जामिनेशन का, तो उसमें आपने एक तो अपना रेगुलर का फॉर्म भरा होगा, इसके साथ आपने सप्ली का फॉर्म भरा होगा जिसके लिए अलग फीस भी दी होगी। तो ये जो है आपने जब फॉर्म भरा तो अब एक लिस्ट बनेगी, एक ग्रुप बनेगा। डेफिनेटली वो कंट्रोलर जो है हमें वो लिस्ट भेजेगा कि ये जो है एलिजिबल हैं स्टूडेंट्स, इसको आप बिठाएंगे अपने एग्जामिनेशन में। वो एग्जामिनेशन में बैठेंगे, वो एग्जामिनेशन में बैठेंगे सारे के सारे, और उनको अपना जो है ना एडमिट कार्ड भी मिलेगा ऑनलाइन, उसका अपना नंबर होगा। वो एडमिट कार्ड जो है दैट इज़ द परमिशन टू सिट इन द एग्जामिनेशन। तो हमारे पास जो ग्रुप बना होगा उसमें आप सब इंक्लूड होगे। ये जो अभी ग्रुप चल रहे हैं दैट इज़ अ टीचिंग ग्रुप। तो ये तो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट टर्म का मिसाल, जैसे कि अभी प्रैक्टिकल चल रहा है बी बैच का, तो बी बैच के स्टूडेंट बैठे हुए हैं। तो अगर थ्योरी का चलेगा तो सारे स्टूडेंट बैठते हैं। तो आप जो आपके 2018 के स्टूडेंट है वो नहीं बैठते, क्योंकि ये इस क्लास के स्टूडेंट नहीं है। तो अब जो एग्जाम होगा वो एग्जाम का अलग एक है, जैसे हम एग्जामिनेशन के लिए एग्जाम हॉल बनाते हैं जिसमें हम नंबर लगाते हैं, और इसी तरह से हम यहाँ पे भी एक एग्जाम हॉल बनाएंगे जिसमें आप सब स्टूडेंट होंगे। ओरल के लिए 20 स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाएंगे, और थ्योरी एग्जाम के लिए हम सबको जो है ना इंक्लूड करेंगे। इसमें हो सकता है 2 ग्रुप या 3 ग्रुप बने, क्योंकि इसमें जो असाइनमेंट में है 200 स्टूडेंट से ज़्यादा आप इनरोल नहीं कर सकते। इसलिए हो सकता है कि 2 ग्रुप्स बने, और 2 ग्रुप्स में जो है ना ये पेपर तो एक ही है, सब में सबमिट होगा, एंड देन यू हैव टू सबमिट दैट वन अकॉर्डिंगली। तो हो सकता है कि असाइनमेंट के लिए हम जो है ना ये थ्योरी के लिए 2 ग्रुप्स बनाएं, और प्रैक्टिकल के लिए जितने भी स्टूडेंट्स होंगे 20 ग्रुप्स के जो है ना वो इतने ग्रुप्स बनेंगे, एंड देन वी विल टेक अ 1-to-1 जो है ना एग्जामिनेशन। ठीक सर, ठीक। सर एक्सक्यूज मी सर, सर जी हम एडमिट कार्ड सर कैसे रिसीव करेंगे? वो ऑनलाइन मिलेंगे बेटे। ये आपने जैसे ईमेल एड्रेस अभी आपने जो है ली है, अभी जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ यही आपकी जो है ना ईमेल एड्रेस ही यूज़ होगी, यही नंबर होगा जो अभी जो आपके पास नंबर है ना। नंबर चेंज नहीं होता ना हमारे यहाँ, तो चाहे टीचिंग के लिए हो चाहे एग्जामिनेशन के लिए हो, नंबर और ये ईमेल आईडी, जैसे आपका जो नंबर है ईमेल आईडी भी यही है आपकी, तो इसलिए ये चेंज नहीं होगा, सिर्फ एलिजिबिलिटी अलॉट होगी। मतलब ये कहेंगे कि भाई आपका अगर नंबर है सपोज करें कि 233, तो आपको 233 मिलेगा, और इसी ईमेल के साथ इसी नंबर के साथ आप एग्जाम में बैठेंगे। सिर्फ हमारे पास लिस्ट आएगी कि ये एलिजिबल है, आप इसका ग्रुप बनाएं और इसका एग्जाम लें। तो हमारे पास ये जो अभी जो आपके ग्रुप बने हैं वो एडमिशन लिस्ट पे बने हैं। अभी जो एग्जामिनेशन के जो ग्रुप बनेंगे वो एग्जामिनेशन लिस्ट पे बनेंगे। तो वो दैट विल बी सबमिटेड टू अस, और वो हमें मिल जाएंगी जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे ऑनलाइन, तो हमें वो जो है ना सारी लिस्टें मिल जाएंगी, और हम अपने ग्रुप बनाएंगे। ये टीचिंग ग्रुप तो पहले बने हुए हैं ना। व्हाट वी विल डू, वी विल इंक्लूड ओनली दोज स्टूडेंट्स, हम उन स्टूडेंट्स को इसमें बिठाएंगे जो सप्लीमेंट्री वाले हैं, बाकी तो टीचिंग वाले तो सारे बैठेंगे। अगर उन्होंने फॉर्म भरा है
सिर्फ वो निकलेंगे जिसने फॉर्म नहीं भरा या जिसकी अटेंडेंस पूरी नहीं है, वो निकल जाएंगे, बाकी तो सारे के सारे बैठेंगे। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके बेटे।